Good morning, students. Welcome to my class. Today we will discuss the following topics: kinds of force of the third chapter of physics, the law of motions. There are two kinds of force: first, contact force, and second, non-contact force. So we shall discuss the two topics: contact force and non-contact force. So let us start with the first type of force, contact force. What is contact force? What is contact force? Applied by one body to another body when they are in physical contact is called contact force. Means when two bodies are in contact, then one body applied force on another body is called contact force. As for example, if we push the wall, then this is the contact force, and this type of force is called muscle force. So there are examples of contact force. Example of contact force. First, frictional force. Second, normal reaction force. Third, force of tension. Exerted by a string Fourth, force exerted by a spring. Fifth, force exerted between two bodies during collision all these are the example of contact force, because these force are applied by touching the body. So what is contact force? The force applied when two bodies are in contact or in touch, then this type of force applied is called contact force. These are the examples: frictional force, normal reaction force, force of the tension exerted by a string, force exerted by a spring, and when two bodies collide one another, then these are the also example of contact. Find the second type of force, non-contact force.
What is non-contact force? Non-contact force is the opposite of contact force. In contact force, physical touch is necessary, but in non-contact force, physical touch is not necessary. So the force applied between two bodies without being physical touch is called non-contact force. So we can define the non-contact force as following. What is non-contact force? The force experienced by bodies without being physical touch is called non-contact force. So in non-contact force, physical touch is not necessary. Example of non-contact force: gravitational force, electrostatic force, third, magnetic force, etc. are the example of non-contact force. So in this force, physical contact is not necessary. So what mainly difference between the contact and non-contact force is contact force is applied between two bodies when two bodies are in contact, and the non-contact are those type of force which experienced by bodies when those are not in physical contact. Now we shall discuss the types of non-contact force. Let us start with frictional force. What is frictional force? The force which opposes the motion of body when they are in contact is called frictional force. Means those force which opposes the motion of bodies which are in contact is called frictional force. So in frictional force, the both bodies are in contact. Let us take an example. Let a body A of mass m wants to slide over a surface. मान लेंगे कि एक बॉडी है A जिसका मास m है, वह इस सरफेस पर यह फिसलने का कोशिश करता है. इस पर F फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. तो जो इस बॉडी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा
यह ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इधर की तरफ अप्लाई होगा। यानी यह हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हाउ कैन वी मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मान लें कि इस पर स्प्रिंग बैलेंस लगाएंगे, यह स्प्रिंग बैलेंस हमको 5 न्यूटन का फोर्स बता रहा है, इस पर 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में या -5 न्यूटन का या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जब बॉडी रेस्ट में है तो इस कंडीशन में जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह 0 है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड नेट फोर्स? नेट फोर्स जैसे अगर मान लो कि बॉडी इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, तो 5 यह दोनों मिलकर के होगा 5 न्यूटन और प्लस -5 न्यूटन, मीन्स overall force is 0, so net force is 0, so the body does not move here frictional force। यह जितना इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? द फोर्स exerted by surface on an object placed over it is called the normal reaction force। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? अगर मान लो यह एक टेबल का सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक प्लेस किए, इस ब्लॉक का मास m है, लेट द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। तो यह ब्लॉक क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट होगा, वेट mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा mg। दिस फोर्स अप्लाई ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो इस बॉडी का वेट mg है जो ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अप्लाई हो रहा है। तो यह अगर मान लो कि यह बॉडी m मास का बॉडी है, इस पर फोर्स mg अप्लाई हो रहा, एक फोर्स है यहाँ पर इस सरफेस पर जो इसको नीचे मूव होने से रोकता है। अगर यह नहीं रुकता तो ये बॉडी रेस्ट में नहीं रहता, ये नीचे गिर जाता, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा, अगर यह F फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास m है, तो इसमें बॉडी एक्सीलरेट होगा, नीचे मूव करेगा, लेकिन एक फोर्स है यहाँ पर, यह इसको रोक रहा। वह फोर्स किधर लग रहा? दैट फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। यह फोर्स जो अप्लाई हो रहा तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा, यह जिसका मैग्नीट्यूड जितना यह mg फोर्स है इसी के बराबर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा, जिसके कारण से यह बॉडी रेस्ट में है। सो दैट फोर्स, तो यहाँ पर डिफिनीशन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस। सरफेस क्या है? यह सरफेस है, यह सरफेस इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ओवर इट। सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओवर इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये सरफेस के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यह किधर लग रहा है? जितना फोर्स यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। लेट द मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग n से सिम्बलाइज करेंगे, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n से सिम्बलाइज करेंगे। n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पर यह जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, तो यह परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई होगा। जैसे यह इधर अप्लाई हो रहा, तो यह अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में अपवर्ड डायरेक्शन में यह फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो
यह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा यह जितना वेट होगा उतना ही होगा और यह ठीक परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, हाउ कैन बी शो दिस? तो बॉडी यह है, इसका जो टोटल इस बॉडी का जो सेंटर होगा यहाँ है, तो जो इसका जो वेट अप्लाई होगा इस सेंटर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर mg वेट अप्लाई होगा और ठीक इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अपवर्ड डायरेक्शन में यह n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा और यह n इज इक्वल टू mg होगा। अगर इस बॉडी का मास m है तो n इज इक्वल टू mg अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर यह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। टेक द next example of contact force, that is tension force in a string. How can we define the tension force in a string? The tension force in a string is defined as the force that is transmitted through a string when pulled by force acting from opposite sides. तो टेंशन फोर्स क्या होता है? एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको एक रिजिड सोर्स मान लीजिए सिलिंग से उसको बांध देंगे, यह स्ट्रिंग है एंड और यहाँ पर एक m मास का मान लीजिए बॉडी लेते हैं, यह बॉडी है जिसका मास m है, यह m मास का बॉडी है, इसलिए यह बॉडी में जो ड्यू टू ग्रेविटी इसमें जो फोर्स लगेगा इसका वेट होगा mg, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। लेट द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, यहाँ पर स्ट्रिंग का मास 0 मान लेंगे। तो यह m मास का बॉडी है, इसका वेट mg है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। यह चूंकि रेस्ट में है, यह टूट नहीं रहा, तो इसलिए एक फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस स्ट्रिंग में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड टेंशन। यह एक फोर्स यहाँ अगर हम लोग यहाँ से अगर कैंची से इसको अगर हम काट देंगे, इस स्ट्रिंग को काट देंगे तो इस स्ट्रिंग में जर्क आएगा, जर्क आएगा, यह अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इससे पता चलता है जो एक फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जो इसको नीचे मूव करने से रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। और एक फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, यह फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? तो यह यहाँ पर इस पोजीशन पर यह फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है। यह फोर्स भी जितना यह है फोर्स टेंशन, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड सेम mg के इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। और यह भी यहाँ पर जो यह सीलिंग है, सीलिंग जिस पॉइंट पर यह अटैच्ड है यह स्ट्रिंग, उस पॉइंट पर भी फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंशन। यहाँ पर भी T होगा, यह भी इसका वैल्यू mg के बराबर भी होगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर कट करेंगे तो जर्क अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर कट करेंगे तो यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इसमें जो टेंशन है यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इस पॉइंट पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। यह किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड के बराबर, तो mg। तो द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज टेंशन फोर्स applied. It is tension is also a type of force. Contact force, that is tension force in a spring, means the tension force developed in a spring. The spring exerts a force F opposite to the direction of the displacements of its free end. The magnitude of this force is directly proportional to the magnitude of displacement of this force is called de-storing. This force is also called de-storing force. Means, let us take an example. मान लेंगे दो बॉडी है A और B, इसको नॉर्मल एक स्प्रिंग से अटैच किया गया हुआ है।
यह प्लेन सरफेस पर है, दोनों बॉडी यह एक प्लेन सरफेस पर है अटैच्ड। इस कंडीशन में इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, इधर से भी इधर से कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने पर स्प्रिंग कंप्रेस करेंगे, बॉडी में एफ फोर्स इधर से अप्लाई करेंगे और इधर साइड से एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। इस कंडीशन में जब दो इधर से एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर से एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो स्प्रिंग भी एफ फोर्स अप्लाई करेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। एफ फोर्स इधर की तरफ अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन में जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। दूसरा बॉडी बी है, एक सरफेस पर है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, मीन्स एफ फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, राइट फोर्स एफ फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्प्रिंग हुआ जो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा यह इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर यह फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, एफ ही होगा, इट इज ऑल्सो रीस्टोरिंग फोर्स। या इस डायरेक्शन में जब हम कंप्रेस करेंगे तो फोर्स इधर की तरफ अप्लाई करेंगे, और तो जो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है ठीक अपोजिट, ये इधर बाहर की तरफ इधर और ये इस साइड की तरफ अप्लाई होगा। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स एफ अप्लाई करेंगे इधर, इसमें एफ फोर्स इधर अप्लाई करेंगे, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा सो इस तरफ अप्लाई होगा। यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स सेम डायरेक्शन अप्लाई होगा। So the tension force in a spring applied when the springs are compressed, when the spring is compressed or it is elongated. So when it is compressed, then the restoring force applied in opposite directions. So and when the string is stretched, then the restoring force applied in the same direction toward one another. So let us take the another example of contact force exerted during collisions. Means when two bodies collide, they push each other. As a result, equal and opposite forces acts on each body. Means let two body moves on a straight line. First body is A. It is moving with initial velocity u1 in these directions, and another body B moves with initial velocity u2 in the same direction. Here the velocity of u1, the velocity of body A is greater than the velocity of body B, means u1 is greater than u2. So since the velocity of first body is greater than the velocity of second body, so both collide. So
both body A and B collide for very short interval of time, and the body A apply a force FAB on body B, and body B applied a force FBA on body A. So here the direction of force is towards B, and here the direction of force is towards A, and both the force is equal in magnitude. FAB is equal and in opposite direction to FBA. So the magnitude of both force is equal and in opposite, and the both body collides for very short interval of time t. After collision, the final velocity of body B becomes v1, body A becomes v1, and it moves in the same directions, and the final velocity of body B becomes v2. Since at the first case the initial velocity of u1 is greater than u2, so after collision the both body moves in the same direction, but the velocity of body A is less than the velocity of B, means v1 is less than the v2. So this is also a type of contact force, because this force applied for very short interval of time t, and so this is the next example of contact force exerted during collisions.